Just a quick revision of equivalence. ओके Okay. जो रिलेशन तीनों ही प्रॉपर्टीज को अग्री मतलब करता है, तीनों टाइप के रिलेशनशिप को, वो कहलाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस. So let's talk about. Just give me 1 second. ओके हाँ जी. ये ये वाला वर्ड, ये लाइन दिख रही है जो, हम्म a relationship which is reflexive, symmetric and transitive is called as equivalence relation. ठीक है An important property of an equivalence is that it divides the set into pairwise joint called equivalent classes whose collection is called partition of the set. Note that union of gives the whole set. So equivalence relation एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें there is something called as equivalent classes. इतना ही लिख के दे दिया इन्होंने बस. हाँ तो मतलब insufficient theory is there. ऐसा अब एनसीईआरटी ऐसे लिख के छोड़ देता है. बाइजेक्टिविटी के अंदर आ गया ये. पार्टीशन ऑफ ए. इसकी तो अलग थ्योरम्स है. हम्म तो पूरा ही बहुत बड़ा टॉपिक है इक्विवेलेंस का. इसी एनसीईआरटी ने कहाँ तक इसको ट्रीट करा है. सिमेट्री पढ़ा हमने, डायग्राम पढ़े, इक्विवेलेंस. टॉलरेंस. Okay, let's hold it. Okay.
Let's first see what are the type of question. एक line लिख दी equivalence की. Let's first practice reflexive, symmetric, and transitive. Then let's come back to this. Okay. इन्होंने दिया कितना एक्चुअली लिख दी बड़ी इंपॉर्टेंट है बट यार इसके पीछे तो गाताएं लिखी नहीं. Why is this just a one liner? फंक्शंस इसके बाद फंक्शन शुरू कर दिए. फंक्शन पे ज्यादा क्वेश्चन है. ओके मिल गया एक क्वेश्चन. Okay, so example 12. In a Okay. set of natural numbers, define the relationship that n m n belong to the natural number. N is related to m. If on division by 5, each of the integers in n and m leave the remainder less than 5. That is the numbers, okay? Show that R is an equivalence relationship. Okay, so first is relationship is n if on division by 5 of each of integers n and m of the integers leaves the remainder less than 5. Okay, that is these should be the remainder. Show that R is an equivalence relation. R is reflexive since for each R is symmetric. If A R V, then R. Also R is transitive. Okay. Here R is an equivalent relationship in N which will partition the set into a pairwise disjoint sets. Okay, equivalence में यही था. The relation in which all relation in N which will partition the set N into pairwise disjoint subsets. The equivalent classes are mentioned below. 5, 10, 15, A1, 1, 6, 11. Okay, if I divide it by 5, I get 1, 1, 1, 1. Okay, 7, 2. It is evident that above 5 sets of pairwise are pairwise disjoint and A1 union, yes, it is true. R is reflexive since A belongs to N. A is linked to itself. Integer N and M. R is symmetric क्योंकि उसका inverse भी available होगा. And R is transitive for A, B, C. If A is related to B, B is related to C. ये वाला part तो फिर से they have not given any explanation. They've just written it down. ये वाला part तो ठीक है. R is an equivalence relation in which will partition the set into pairwise disjoint subsets. Pairwise disjoint subsets. Pairwise disjoint subset. Okay, two disjoint sets are
the ones if no pair of set has elements in common. I think very soon the clarity will emerge. So this is an example of pairwise. पहले तो पढ़ लेते हैं what is a pairwise disjoint set. A set of set is disjoint if no pair of those sets has elements in common. So if you see these sets, इनमें कुछ common नहीं है, सब अलग हैं. They're disjointed, right? हाँ. They have read the definition first. If no pair of those sets has elements in common, look at any pair. 5, 10, 15 is not in A1, it's not in A2, A3. तो ये जो सेट A0 है, A1, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. Hmm. Okay, hence R is an equation in which all part n which will partition the set into a pairwise disjoint subsets. The equivalent classes are mentioned below. Okay, तो इसने ये करा है कि एक ऐसा इंटीजर्स लिए हैं, he has taken those integers जिनको डिवाइड करने पे 0 आता है आंसर. तो वो नंबर्स हैं, देखो 5, 10, 15 और 20. 5, 10, 15. एक सजेशन दो, हाँ. चेक द कोर्स, क्या कटा क्या नहीं कटा. Okay. देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी क्योंकि दीज टॉपिक्स आर अगेन मूविंग इनटू सम अदर एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एक बार चेक कर लो कि सेट्स और फंक्शंस में क्या कटा और क्या नहीं कटा. ऐसा ना वी एंड अप वेस्टिंग 10 क्लासेस ऑन दिस और ये कट गया. Hmm. जस्ट डू अ रन थ्रू ऑफ सबसे पहले सीबीएसई में चेक कर लेते हैं, समझ आ जाएगा. बट इतना टाइम ना लग जाए कि समझने में कि, कि फिर कोर्स में नहीं है, देन इट इज पेनफुल. Hmm. लेट्स नॉट डू समथिंग विच इज नॉट इन कोर्स. बुकलेट 1, ओ बुकलेट 1 है ना नाम इसका, बुकलेट क्लास 12, Yes, sir. पेज नंबर 40, 50 नहीं, मैथ्स में 42. पेज नंबर 13 और 14 कट गए. 13, 14, 16 से 25. चेक कर लेता हूँ. जो ये नई वाली एनसीईआरटी है उसमें तो कटा हुआ है ऑलरेडी. क्या? ये सब. अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली आई एम यूजिंग पेज नंबर 13 और 14. लेट मी जस्ट ओपन. जो ऑनलाइन जो बुक डली हुई है वो नई वाली डली हुई है. ओके, पेज नंबर 13 एंड 14 में क्या है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में तो देर आर क्वेश्चंस. हाँ.
14 भी कट गया? नई बुक का नहीं कटा। तो ये किस किस में से काटा है इसने? पुरानी जो एडिशन थी। अच्छा, पुरानी एडिशन। ये बात भी सही है, पुराने से ही काटेगा। क्वेश्चन 12 एंड 13। तो अब जो हम बुक रेफर को कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी कट चुका है सब। ये सब। Composition of function and invertible function. Up to this leads to the following definition. पेज नंबर 12 पे जाता हूँ मैं। पेज नंबर 12। तो जो नई एनसीईआरटी वो करनी है मतलब, ये सब। यही हो रहा है इसका मतलब। हम्म। तो इन्होंने वो टॉपिक्स में तो नहीं दिखाया हुआ कि क्वेश्चन 1 2 3 6 7 9 11 14 18 19 काट दो। समरी पॉइंट्स 11 13 15 19। 29 पे क्वेश्चन नंबर 1 3 काटो। काट दो यार, क्या मतलब है इसका? 29 पेज है। इसमें तो टोटली 17 पेज है। इसमें सब कुछ कटा हुआ है। ठीक है, फिर ये वाला कर लेते हैं क्योंकि ये इस मैंने तो इसी से कॉपी करा है। इसमें सब कुछ करना। ओके, ठीक है। मैंने तो कॉपी ये एनसीईआरटी से कॉपी करा है मैंने, एग्जाम्पल 12। एक सेकेंड, एग्जाम्पलर से तो नहीं कॉपी करा मैंने, ये भी मुझे शक है बड़ा तगड़ा। नहीं, आई हैव कॉपीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी नॉट फिर एग्जाम्पलर। करना है। फिर करना है ना? ठीक है, हम्म। करना है तो करना है फिर, ठीक है। लेट्स डू इट। Okay, so he has actually created the sets which satisfy the condition that if the numbers are divided by 5, the remainder is 0, तो वो ये नंबर हो गए। The हाँ। numbers which leave a remainder of 1 ये हो गए। The numbers that leave a remainder of 2 ये हो गए। फिर 3 and 4 ये सारे वो रिमाइंडर आ गए। हम्म। These are अगर इनका these are disjointed sets because they have no common, and if you take union of all of them you can see तो पूरे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा नेचुरल नंबर ही बन जाएगा इनके यूनियन से। यूनियन का मतलब होता है इंक्लूड ऑल। जैसे कि एक सेट है 1 और 2, और बी सेट है 3 and 4, इनका यूनियन निकालना हो, ए यूनियन बी, इट बी व्हाट 1 2 3 4। तो ये यूनियन का साइन है। हम्म। इफ यू टेक यूनियन ऑन ऑल ऑफ दीज तो देखो नेचुरल नंबर वापस ही आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर ही बन गए ना नेचुरल नंबर्स वापस। यूनियन का मतलब मालूम है ठीक से? यूनियन में तो शायद सारे लेने होते हैं। बस सारे ले लिए। हाँ। अगर आप ये सारे एक ही में डाल दोगे तो क्या लिखोगे पूरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे लिखने पड़ेंगे आपको। हम्म। सारे लिखने पड़ गए मतलब नेचुरल नंबर आ गया ना वापस। ये सब। दिस इज द क्वालिटी ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। दैट इक्विवेलेंस रिलेशनशिप पे
the subsets, which are the disjointed subsets, when they combine, they will give you back the original set. Hmm. Show that R is a equivalence relationship. Also obtain the pairwise disjoint subsets determined by R. जो रिलेशनशिप ने डिफाइन करा है उनके सबसेट बताओ। तो सबसेट तो बना लिए बड़े आराम से। इससे Hmm. लिखा है ना, R is a reflexive sense for A belonging. A will include A. A will include A. ठीक है। N और M. If on division of 5 each of the integers n and m leave the remainder less than 5. N m. अभी तो हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्सिव में, तो द ऑर्डर्ड पेयर इज लाइक दिस, राइट? If this is existing as part of the relationship, then the relation is reflexive. ठीक है। अगर आपके पास एक इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हैं, मान लो ये n है, n is integers, all integers, m is also all integers. अगर आप इनसे रिलेशनशिप बनाओगे तो उसमें 1 1 इंक्लूड हो जाएगा, Hmm. 2 2, 3 3, 4 4. is reflexive. Leave this part for a while. Let's only worry about equivalence relationships. अभी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक की हम वो करते हैं प्रैक्टिस। ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो इक्विवेलेंट क्लासेस आपको बनानी है वो बनानी है आपको, जो भी रूल दिया हुआ है that on division of 5 by each integer the remainders are 0 1 2 3 4 5. तो आपने वो सारे नंबर बना दिए which leave remainder of 0 1 2 3 4. हाँ। और अगर इन ये डिसजॉइंटेड, ये these are disjoint subsets, और अगर आप इनको पूरा यूनियन लोगे इन सबकी, तो देखो क्या बन गया। So which of the following sets are disjoint? इसमें देखो, इसमें A रिपीट हो रहा है, हम्म। इसमें भी A रिपीट हो रहा है, हाँ। इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। So this set is a disjointed set. A set of sets is disjointed if no pair of those sets has element in common. All right. जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चन आ गए। हाँ। डिस्क्रीट मैथ्स। Choose the correct option. Let R be a relationship on the set n of natural numbers defined by n Rm if n divides m.
if n divides m, मतलब divisible होना चाहिए, then R is reflexive. The correct answer is, okay, so n divides n, R is reflexive. If n divides n, if n divides n, R is reflexive. R is not symmetric since 3 comma 6. So 6, 3 divides 6, but 6 does not divide 3. Reverse is not true. ये रिफ्लेक्सिव तो इसलिए हुआ ना क्योंकि आप लिख लो अगर 6 कॉमा 6, तो 6 divides 6 and this also divides this, right? हाँ। जो ऑर्डर्ड पेयर्स तो इसमें सिर्फ यही यूज करने अलाउड होते हैं ना हम्म। रिफ्लेक्सिव के लिए. तो दे डिवाइड ईच अदर, राइट? वन तो आएगा कम से ये कम. सब। हाँ। सिमेट्रिक में इफ यू कीप एनीथिंग, सिमेट्रिक का मतलब होता है 3 6 एंड 3 6. अगर है तो एक और भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए 6 3. बट 3 divides 6, but 6 cannot divide 3. हम्म। So it is not symmetric. Okay, so let's say, is it transitive? So 3 divides 6 and 6 divides 18. 3 divides 6 and 6 divides 18. Then does 3 divide 18? Yes. हाँ, ये सब करेक्ट। तो ये transitive भी हो गया. So it is reflexive, it is transitive, but it is not symmetric. ठीक है। धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है. थोड़ा सा लैंग्वेज जो है, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद देयर लैंग्वेज, किस तरह से इन्होंने इसको आर्टिकुलेट करा है, थोड़ा सा बेटर कर सकते थे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन बढ़ा सकते थे. हम्म। ना एक्सप्लेन करा ना कुछ करा ठीक से ऐसी. ओके, सो देयर इज अ सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, लेट आर बी रिलेशनशिप. दैट रिलेशनशिप इज दैट, ये एक रिलेशनशिप है कि if and only if L is perpendicular to M. So there are two lines. एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये है कि दीज लाइंस, ऐसे मैं बना रहा हूँ लाइंस, और परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस. ओके। तो if this line, if a line, this line is perpendicular to this line, right? हम्म। So uh, if this line is perpendicular to this line, reflexive में we want same, right? Identical. हाँ, करेक्ट। दोनों इंक्लूड होने चाहिए, वो तो नहीं हो पाएगा. नहीं। ट्रांजिटिव में if this line is perpendicular to this line and this line is perpendicular to this line, then is this line perpendicular to this line? No. नहीं है, इनकरेक्ट। है ना, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, हम्म। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है. ये सब। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं कि
सिमेट्रिक में वी वांट इनवर्स टू बी ट्रू. हाँ. If this line is perpendicular to this line, then this line is perpendicular to this line. ये हाँ. ट्रू है. यस सर. If this line is perpendicular to this, then this line is perpendicular to this. Inverse is also true. हाँ. It's a symmetric relationship. Nature of relationship is symmetric. It follows, ठीक there है. is a symmetry in the relationship. आ गया क्वेश्चन इंजेक्टिव. ये तो पढ़ा ही नहीं हमने अभी. इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव. ओके, नो प्रॉब्लम. आई एम गोइंग टू अनसॉल्व नाउ. ओके. फंक्शन बहुत इजी है इससे, पता है. अच्छा. If you can try this. हाँ जी. इसको बनाना है. हम्म. अ, क्या बनाना है? पहले रिफ्लेक्सिव बनाना है. हाँ. रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव. बनाने के लिए एक तो बीबी चाहिए मुझे, यस सर. एक सीसी चाहिए. हम्म. ये जोड़ते ही ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया. सिमेट्रिक बनाने के लिए बीसी है तो सीबी भी चाहिए मुझे. यस सर. एबी भी चाहिए मुझे. बी. अगर, हाँ, एबी है तो बीए भी चाहिए, है ना. हम्म. अच्छा, अगर इसको मुझे अब ट्रांजिटिव भी बनाना है, तो मैं मान लो ये वाला लेता हूँ. बी इज लिंक टू सी
इसको बनाना है मुझे. A is linked to B and B is linked to C. So so A is linked to C. हाँ तो A ठीक है। is linked to B है. B is linked to C है, कहीं पे दिख रहा है? नहीं है ना? है नहीं। ये रहा. हाँ पर। ये रहा. ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक एक है। मिसिंग है. ऐसे ही B is linked to A. A is linked to C. So B is linked to C. ये है, दिख रहा है कहीं पे? B is linked to A है कहीं पे? ये रहा. हाँ है ये A सब। is linked to C है कहीं पे? ये रहा. ये रहा हाँ। तो B is linked to C, वो भी है. हम्म। और क्या बना सकता हूं मैं? C is linked to B and B is linked to C. Sorry, B is linked to A. तो C is linked to A. C is linked to B कहाँ पे है? And B is linked to A. ये भी है. C हम्म। is linked to A. ये है कहीं पे? ये नहीं है ना? नहीं है, सी लिंक टू ए नहीं है। इसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि A लिंक टू C है. तो उसका सिमेट्रिक बनाने के लिए उसको ये भी तो लिखना पड़ेगा. correct। तो इससे सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया ये वाला. हम्म। बना दिया ऑर्डर. ये जोड़ेंगे हम. देखें आंसर इसका. हाँ ये सब। पीछे दिए होते हैं. बस जरूरी नहीं है. फाइनल सॉल्यूशन तो होता है कुछ कुछ का। होगा. ओके. जरूरी नहीं, मतलब ये भी कंफर्म नहीं कि मिलेगा ओके. सबका। चलो. इसने जोड़े हैं BBCCAC. अच्छा। BBCCAC. हमने AC भी जोड़ा है. अगर AC जोड़ोगे दोस्त, तो AC का इन्वर्ट भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना. नहीं तो सिमेट्रिक कैसे बनाओगे? हाँ ये तो है। है ना? लेकिन सिमेट्रिक की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? तीनों बनाने हैं, देखो. अच्छा हाँ, क्वेश्चन में सिमेट्रिक नहीं नहीं है। चाहिए. ओहो, सॉरी हम्म, सॉरी सॉरी. सिमेट्रिक नहीं चाहिए था, सिर्फ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बनाना है. ठीक है ठीक है ठीक है. तो इसको हटा सकते हैं. हाँ। अच्छा, मैंने तो एक और जबरदस्ती बना दिया था. हम्म। सिमेट्रिक. कौन सा बनाया था मैंने सिमेट्रिक? कि इसका इन्वर्ट भी अवेलेबल होना चाहिए फिर. CB. CB BC का इन्वर्ट. तो सिमेट्रिक ही बनाता है ना उसको. ये सब। इसको भी हटा देता हूँ ना फिर मैं. हाँ सही रहेगा सब। और मैंने AB को उल्टा भी डाला था हम्म। सिमेट्री के लिए. तो यही आंसर हुआ फिर. हम्म, ठीक है। रुको, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ भाई. हाँ सही है। आंसर इज BBCCAC. सही है. ठीक सिमेट्री है। की चिंता नहीं करनी थी हमको. हाँ। ओए, कर लिया. कितना रुलाया है इसने भाई, बड़ा रुलाया है. वाह। इसकी लैंग्वेज बड़ी अजीब है. हाँ। इतना रुला दिया है कि तंग कर मारा है, जिसे बोलते हैं ना. हम्म। लैंग्वेज की वजह से. ये सब। एक भी हो जाए तो लगता है ओ हो, कर लिया कर लिया. तो you are given relationship R1 is equal to AA, AB, AC, BB,
BC, CA, CB, CC. Question is, tell whether these are reflexive, symmetric or transitive. बताओ जी, what's your answer? हम्म, A A B B C C है, हाँ तो तीनों। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। हाँ ये वाला हो गया हाँ। अच्छा, ऊपर दिया हुआ है, सॉरी, they are defined on a set A is equal to A B C. वो अच्छा। So these relationships have been derived from a set. तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि ए ए बी बी सी सी तीनों है। हम्म, अब सिमेट्रिक के लिए चेक करो, सबका उल्टा अवेलेबल है, ए बी का उल्टा अवेलेबल है, ए बी, ए बी का उल्टा नहीं सिमेट्री है के पॉइंट तो ऑफ व्यू वो से। नहीं करेंगे। तो सिमेट्रिक तो नहीं है, बिल्कुल भी है। अच्छा चेक करना है सिर्फ, मैं हाँ, सोच। चलो चेक करना, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। देखो, चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ए बी का उल्टा बी ए नहीं था। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। कैसे? ए बी और बी सी को ले लें, ए इज रिलेटेड टू बी, हाँ कैसा? बी इज रिलेटेड टू सी, सो ए सी। शुड बी रिलेटेड टू सी। हाँ करेक्ट। ए सी कहाँ पे है? है थर्ड पे। ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, हाँ है, ए सी, ओके। और बी इज रिलेटेड टू सी एंड सी इज रिलेटेड टू ए, देन बी शुड बी रिलेटेड टू ए, बी ए कहाँ पे है? अच्छा हाँ वो वाला केस नहीं बन रहा, एक वो नहीं है। एक वही केस मिसिंग है, बाकी सारे बन रहे हाँ, तो सिर्फ वही हुआ ना, रिफ्लेक्सिव हुआ, हैं। सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक भी नहीं है नहीं। और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ओनली वो है। कैसा? समझ आ गया? हाँ। ओके, फिर सेम सेट है ए, उसके ऊपर लिए सेकंड रिलेशनशिप बनाया R2। बाय द वे, मैं पढ़ूंगा उसको, वो जो क्वेश्चन हमसे 3D का एक हुआ नहीं था ना, जो पॉइंट्स निकालने थे हाँ कैसा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, हम्म। कि एक की डायरेक्शन मालूम थी और लेकिन ये नहीं पता था कि वो कितनी पास है। हाँ तो आई विल स्टडी दैट, वो तो। कि हाउ टू फाइंड दैट पॉइंट।
हाँ जी, इसको बताओ। सो दिस इज अ रिलेशनशिप फ्रॉम द सेट ए बी सी। टेक इट। ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ए बी बी सी सी तीनों ही मिसिंग है। हाँ, मुझे तो सिर्फ ये वो सिमेट्रिक लग रहा है, सिमेट्रिक लग क्योंकि रहा है उल्टे अवेलेबल है। ये। ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक और हाँ, सिमेट्रिक है। यो। तो आई थिंक इट इज ओनली सिमेट्रिक। Yes, sir। तीसरा लिख रहा हूं मैं। अब थोड़ी क्लैरिटी तो आई ना माइंड में। हाँ। स्ट्रगल करने के बाद आती है। हम्म, ये कैसा है यार? ये तो मुझे पता क्या लग रहा है फ्रैंकली। सिर्फ सिर्फ ट्रांजिटिव। ए इज लिंक टू बी, बी इज लिंक टू सी, सो नहीं, सी इज लिंक टू ए ए, इज नहीं इक्वल कुछ टू भी नहीं ए है ये। लिंक टू सी होना चाहिए था ये। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। नहीं। इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। करेक्ट। राइट, हाउ विल यू राइट इन एग्जाम? एग्जाम में कैसे लिखोगे, लिखना जरा। लेट मी सी। ये तो हो गया डिस्कशन फॉर फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। हाउ विल यू स्कोर मार्क्स इन पेपर? व्हाट विल यू राइट? शो हम्म, कि R3 is not transitive, not symmetric. What will you write? Let me tell you क्या गलती हो सकती है लिखने में। How will you write in exam? यस सर। ठीक है, agreed। सबसे पहले you will check reflexive, agreed। Okay, for reflexive, so you're telling them for reflexive क्या होना चाहिए?
ठीक है। ए ए बी बी सी सी फॉर बिलोंग टू। रिफ्लेक्सिव ए बी बी सी सी। They should be part of the relationship. Correct. Should be तो अब चेक कर दो। elements of R. So okay. Since they don't exist, they are the relationship is not reflexive on A. Since this is not avail this so since this is not true, ये मतलब ये जो तीनों है ये एग्जिस्ट नहीं करते, therefore the given relationship is not reflexive on A, ऐसे लिखते हैं। on अच्छा। A मतलब वो सेट 1 2 3 का given relationship is not reflexive कैपिटल ए, सेट का नाम कैपिटल ए, जहां से ये लिए थे। ठीक। ठीक है। अब उसमें क्या लिखोगे सिमेट्रिक में? वाई दिस इज नॉट सिमेट्रिक? हम्म, दिख रहा है एक नंबर का, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर लेने के लिए कागज काले करने पड़ेंगे आपको। हाँ। यू हैव टू एक्सप्लेन। चेक सिमेट्रिक, ओके अग्रीड। शुड बी अगर ट्रू है तो, बट हाँ। ये भी अवेलेबल नहीं है। इवन दिस इज नॉट ट्रू फॉर द गिवन इन द गिवन क्वेश्चन। ये भी ट्रू, सिंस दिस इज नॉट ट्रू। तीनों के लिए ट्रू नहीं है ये। हाँ। ए बी के लिए भी नहीं है, बी सी के लिए भी नहीं है, सी ए के लिए भी नहीं है। तीनों एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी एलिमेंट। ऐसा। सो गिवन रिलेशनशिप इज नॉट सिमेट्रिक। गुड, नीटली डन, बढ़िया लिखा। ओके। ऐसे लिखने आंसर, सामने वाली पार्टी को समझ में आना चाहिए भी आता है, ऐसे नहीं लिख रहे हम। व्हाइट बोर्ड रिस्टार्ट कर दीजिए। कर दो। लो जी, स्टार्टेड। यस सर। ये तो कोई और और पेज बोर्ड है नंबर शायद। पर भी और वन ही कर रहे थे हम। कोई और बोर्ड है। और बोर्ड है कोई? हम्म। नहीं है। नहीं, हमारा तो एंड में ही था। हाँ ये। हम्म, ठीक है। बढ़िया करे।
हो गया सर। गुड जॉब डन। ऐसे लिखने आंसर नीटली एक्सप्लेन अच्छा। करते। हम्म। इसका पता क्या फायदा है, अगर टीचर ने ऐसा लिखा हुआ देख लिया ना, तुम्हारे गलत आंसर भी ठीक हो जाएंगे क्योंकि नीटली हम्म। डन है। हाँ। और ठीक है, लेकिन गंदा लिखा हुआ है तो फिर जाओगे तुम। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। कैटेगराइज द फॉलोइंग रिलेशन एज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक relations. Relationship is this, such that A is brother of B. दूसरा relationship defined है such that A is a cousin of B. तीनों के लिए टेस्ट करना है। हाँ। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए नहीं करना। अच्छा। देखो, अगर आप ए इज द ब्रदर ऑफ बी, राइट, हाँ। इन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप इसको बोलेंगे ए इज अ ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ। अच्छा। ए का होना जरूरी होता है ना, दोनों ब्रदर। हम्म। तो क्या ए अपना ब्रदर खुद हो सकता है? नहीं। ए कॉमा ए, उसमें तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही होता है ना, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, रिफ्लेक्सिव के लिए। हाँ ये सर। तो मैं रोहित हूं और मैं लिख देता हूं रोहित इज अ ब्रदर ऑफ रोहित। अच्छा ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज नॉट ट्रू। हाँ आई करेक्ट। कैन नॉट बी माई ओन ब्रदर। हाँ। तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर अलाउड नहीं है। हम्म। मान लो तीन बंदे हैं, रोहित,
गर्वित, क्षितिज। ठीक है। रोहित इज अ ब्रदर ऑफ रोहित, क्षितिज इज द ब्रदर ऑफ क्षितिज, गर्वित इज अ ब्रदर ऑफ गर्वित। ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर बना ली हमने, रोहित रोहित, गर्वित गर्वित। ये तो अलाउड ही नहीं है। हाउ हाँ। कैन आई बी ब्रदर ऑफ माई सेल्फ इन लाइफ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। बट गर्वित इज अ ब्रदर ऑफ रोहित एंड रोहित इज अ ब्रदर ऑफ गर्वित, ये तो सिमेट्रिक है। हम्म। ये पॉसिबल है। हाँ। एंड इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू ना। लगता है सुनने में। अ, रोहित इज अ ब्रदर ऑफ गर्वित एंड गर्वित इज अ ब्रदर ऑफ रोहित, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। बट लेट्स से रोहित इज अ ब्रदर ऑफ शालिनी अच्छा। एंड शालिनी इज अ ब्रदर ऑफ रोहित। हाँ। ये अलाउड है? नहीं, ये नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। ये सिमेट्रिक भी नहीं है। हम्म। अनलेस ये लिख दे कि ए एंड बी आर बोथ मेल्स। अच्छा, क्लियर है मुझे। है ना। हाँ। ए ए बी बी सी सी, ये तीनों की प्रेजेंस से क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव। हम्म। ए ए का मतलब यहां पे होगा रोहित इज अ ब्रदर ऑफ रोहित। दिस इज नॉट ट्रू। करेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है। गो टू सेकेंड नाउ, कजन ऑफ बी। So रोहित इज अ कजन ऑफ रोहित। नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। रोहित इज अ कजन ऑफ शालिनी एंड शालिनी इज अ कजन ऑफ रोहित। पॉसिबल है। ये वाला पॉसिबल है, हाँ। ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम्म। ठीक है, समझ आ रहा है। काफी भाई, एक चैप्टर जो है, पहला ही चैप्टर जो है मतलब ट्वेल्थ का, हाँ, हाँ। सो इनोसेंट टू लुक एट। यस, हाँ। और जो लैंग्वेज यूज्ड है और जो, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथ्स। हम्म। ओके, so there is a relationship on the set N. ओके। एक रिलेशनशिप है, एक्स वाई आर पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स एंड वाई का आपस में रिलेशनशिप है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। लेकिन मुझे बताओ, अगर एक्स और वाई हैं तो कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो दोनों डालने पे आंसर 41 आ जाए उसके? बोथ आर इक्वल एक्स एंड एक्स, कोई ऐसा नंबर हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है।
सिमेट्रिक में इंटरचेंज करें 2 टाइम्स दैट नंबर प्लस वाई, और फिर हाँ वो वाला नंबर वाई बना दें और वाई वाला नंबर एक्स बना दें और 41 आ जाए। 2 टाइम्स वॉट नंबर, 2 टाइम्स 13, 26 प्लस 15, 26 प्लस 15 41, और 2 टाइम्स 15 प्लस 13, उल्टा, नॉट ट्रू। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है एक्स और वाई इंटरचेंज करने पे जो फॉर्मूले में आंसर को उल्टा कर दे, मतलब नन सेम ऑफ दीज फोर्टी लग वन रहा ही है इसका रखे। तो। है। इसका नन ऑफ दीज लग रहा है। हाँ लग रहा है, यू राइट, आंसर इज नन ऑफ दीस, इट इज नन ऑफ दीस। हम्म। ओके। एक रिलेशनशिप है, ए इज, इट इज डिफाइंड इन 1 2 3 बाय ए आर बी if modulus of a square minus b square is less than equal to 5, then which of the following is false? The relationships are 1 1 के जो members हैं, टू हाँ। कॉमा टू, मतलब इससे डोमेन और रेंज निकाल के वो ल- जो नहीं होता ऐसे बनाते हैं, वो बना लिया है। हम्म। Which of the following is false? Modulus of a square minus b square is less than 5. 2 square minus 5 9, सॉरी, लेस देन इक्वल टू है। डोमेन निकालना है और रेंज निकालनी है। हम्म। रिलेशनशिप, पहले पूरा रिलेशनशिप लिख दो, कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं।
Put the values of 1, 2, 3 in this modulus figure. ये सब फिगर दी हुई है, इसमें कोई वैल्यूज नहीं है। कौन सी में? नहीं नहीं, वो जो फिगर मैंने खुद बनाई है, मैं तो बता रहा हूँ कि वैसे करना है। अच्छा। वैल्यूज खुद लिख लो। एक 1, 2, 3 तो पता ही है ना। हम्म। 1, 2, 3 के करस्पॉन्डिंग वो मॉड्यूलस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुद कैलकुलेट करना है। दो ले लेके, एक बार लेना है 1 और 2, एक बार लेना है 2 और 3, एक बार लेना है 1 and 3। हम्म। मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पुट ए इज इक्वल टू 1 ना। हम्म। पुट ए इज इक्वल टू 1, स्टार्ट विद 1। ठीक है। देन कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बी। अगर ए इज इक्वल टू 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। मतलब ये हो जाएगा 5 इज लेस देन 1 माइनस बी स्क्वायर, एंड इस तरह 1 माइनस बी स्क्वायर। मॉडुलस हटा दिया मैंने। तो अगर मैं इस तरफ को देखूं तो 5 इज लेस देन 1 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 प्लस 1। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन √6। और इधर की तरफ से देखूं तो मैं -1 प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन 5, या 1 माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5, माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, बी स्क्वायर इज लेस देन 4, बी इज बिटवीन 2 एंड -2। ये अगर फुल वैल्यूज निकालनी है तो इक्वल लिख लो। बी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 5, -5। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, 1 माइनस बी स्क्वायर है। ओके, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक -5 एक +5। +5 लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, निकलेगा ही नहीं। माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, +5 लो, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आ रहा है यार? 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मॉडुलस डाला, लेस देन इक्वल टू 5। ए इज इक्वल टू 1।
A is equal to 1, then B is equal to how much? मैं ले लूं 1 - b² इज इक्वल टू 5, तो b² इज इक्वल टू 1 - 5 से, तो यार वो आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जेई का क्वेश्चन है। रिलेशनशिप का इनवर्स रिलेशनशिप निकालना है, ये भी नहीं निकाल सकते अभी हम, इसको रहने देते हैं, छोड़ दो। लेट्स स्टिक टू ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड, और देखें कोई क्वेश्चन है ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का। हम्म, मिल गया। सिमिलर क्वेश्चन बट जो भी जेई का कर रहे थे, बट ये रहा। x minus y plus root 2 is an irrational number, then the relation R is. Horrendous. Real numbers हैं x and y. If you put x is equal to 2 and y is equal to minus root 2, if you put x is equal to 2, what will happen? Y will become equal to minus plus root 2 minus 2. इक्वेशन नहीं है लेकिन सर, It's an इसमें irrational इक्वल में तो कुछ number. दिया नहीं है। इक्वल टू तो दिया ही नहीं है, तो दोनों की वैल्यू लेके देख लेते हैं। If x is equal to 2 and y is equal to root 2, then the number will become 2 minus root 2 plus root 2 equal to 2. And if I put x is equal to root 2 and y is equal to minus 2, sorry 2, then what will happen? Root 2 minus 2 plus root 2. So this is not this is a real number, rational number, right? हमें इरेशनल चाहिए। और ये irrational आ गया उससे। हम्म, Symmetric, it should be symmetric. उल्टा लिखने पे तो सिचुएशन नंबर ही बदल गया। वही। सिमेट्रिक तो नहीं है ये।
अब रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे इसे? इसकी कोई टेक्निक होगी यार, जब इक्वेशन आती है तो कैसे सॉल्व होता है। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। जैसे ऊपर भी था ना क्वेश्चन ये वाला, हाँ। जिसमें ये था मॉडुलस, इसमें भी इक्वेशन थी, इसमें भी इक्वेशन है। इक्वेशन वाले करे नहीं जा रहे यार ये। वो हो गए जो सेट वाले होते हैं, इक्वेशन वाले नहीं हो रहे। हम्म। सेट वाले हो गए ना, कि ए बी बी सी सी, वो तो समझ आ गया। वो आ गए। ये इक्वेशन वाले फंस गए हैं। तो लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू दीज इक्वेशन वंस इन द इवनिंग नाउ, ठीक है। एंड देन कॉल इट क्विट्स ऑन रिलेशनशिप, देन वी विल स्टार्ट फंक्शन टुमारो। ठीक है सर। इसमें भी थोड़ी स्ट्रगल होगी, मुझे लगता है कोई मेथड होगा जो पता नहीं है, वो दिख जाएगा तो हो जाएगा। हम्म। ठीक है जी, सी यू।